So we'll start from Hebrews chapter 12. Last time we saw up to verse 3. और आइए हम इब्रानियों के अध्याय 12 और वचन 4 से आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। और इसके पहले हमने वचन 3 तक पिछले सप्ताह अध्ययन के दौरान देखा था। We saw that the writer of Hebrew exhorts us to fix our eyes on Jesus. और हम देखते हैं कि जो इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वह हमें प्रोत्साहन देता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाएं। That is how we can lay aside every weight and also sin that easily trips us. और इसी माध्यम के द्वारा ऐसे पाप जो हमें उलझाते हैं और जो पाप का बोझ हम पर पड़ता है उससे हम अपने से दूर कर सकते हैं। We also saw the need to consider Jesus in this matter, that is, in the matter of suffering, the matter of hostility from sinners. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमने यह भी देखा वचन में कि कैसे हम पाप से मुठभेड़ कर सकते हैं और कैसे हम पाप से जो संघर्ष करते हैं उसके विषय। Now we can see verse 4, it's written, "You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin." और अब हम वचन 4 से आगे की ओर देखते हैं। वचन 4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। We can see that the writer is telling that our attitude to sin should be such that I'm ready to even die rather than sin. और यहाँ पर हमें प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि पाप के प्रति हमारा जो स्वभाव है वह इस प्रकार से हो कि हम बजाय इसके कि मैं पाप करूं, मैं मरना पसंद करूं, इस प्रकार से हो। And it's just we can look into our own life. Is that our attitude to sin now? Are we taking sin lightly? और आइए हम अपने जीवन के अंदर झांक के, खुद के जीवन में झांक कर हम देखें क्या मैं पाप को हल्के में ले रहा हूँ। It's written in 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 that it's written like this. 2 Thessalonians 2:11. Just want to read that word. For this reason, God will send upon them a deluding influence, so that they might believe the lie. और हम दूसरा थिस्सलुनीके के अध्याय 2 वचन 11 में पढ़ते हैं कि इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। It's written, the word written there is the lie. The lie is the first lie devil tried to propagate. और यहाँ पर हम एक झूठ के विषय में वचन में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर सामर्थ को भेजेगा कि हम झूठ की प्रतीति करें। The lie the devil wanted to propagate is, God said, the day you eat to Adam and Eve, the day you eat of that fruit, you shall die. But devil came and said, you shall not die. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा से अदन की वाटिका में कहा था कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन वहां पर शैतान ने आकर वहां पर झूठ कहा कि तुम नहीं मरोगे। Now this is exactly what devil is also trying to tell us. You can indulge in flesh, you can do your will. It's not such a serious thing. और यहाँ पर भी शैतान हमसे इस प्रकार से झूठ की बातें कहता है कि तुम शरीर में रह सकते हो और शारीरिक रीति से पापों में उलझ सकते हो। But here the writer is writing, telling that our attitude should be such that, Lord, I'll rather die rather than sin once. लेकिन यहाँ पर जो इस पत्री का लेखक है वो हमसे कहता है कि हमारा स्वभाव पाप के प्रति इस प्रकार से हो कि बजाय इसके कि मैं पाप करूं, मेरी मृत्यु हो जाए या मुझे भाई। There is a prophecy in Isaiah regarding the attitude of Jesus towards sin. और एक भविष्यवाणी हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं कि पाप के प्रति जो यीशु मसीह का स्वभाव था उस विषय में। We can see in Isaiah 63. और हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 63, here it's written about Edom. Edom is a representation of flesh. और यहाँ पर हम एदोम के विषय में वचन में पढ़ते हैं जो हमारे शारीरिक इस शरीर के भाव का प्रतिरूप है।
it's written here, who is he who comes from Edom? It's a prophecy regarding Jesus. With garments glowing colors from Bozrah. This one who is majestic in his apparel, marching in the greatness of his strength. It is I who speak in righteousness, mighty to save. Verse 1 and 2. Why is your apparel red and your garments like the one who treads the winepress? और हम यशायाह अध्याय 63 के वचन 1 और 2 को पढ़ते हैं। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? Here is written, the dress of Jesus was red. और यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि उसका जो पहरावा था वह लाल था। And the reason is because he was trodding that enemies in his flesh, and their lifeblood, self-blood was there on his apparel, on his clothes. और हम वहां पर देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह अपने ही शरीर में शत्रु से लड़ रहे थे और उन्हीं का लहू जो है वो वहां पर बह रहा था। And we see in verse 3, I have trodden the winepress alone. And we can see down, he looked around, there was, verse 5, he looked around, there was no one to help. See, Jesus was all alone when he was showing that path that we have to follow. The path where Jesus said no to his will and yes to God's will. और हम अगले वचन 3 में पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में कि मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर हमें एक मार्ग बता रहे हैं कि जहां पर हम पाप से लड़ते हुए परमेश्वर से संगति करने द्वारा हम पाप से लड़े। We can see in verse 4, the day of vengeance was in my heart. That was the hatred that Jesus had against flesh and against sin. और हम वचन 4 में पढ़ते हैं कि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव को, जो उनका शरीर को लेकर और पाप के प्रति जो उनका स्वभाव था। And we can see in verse 6, I trod down the people in my anger. That is, he trod down anger and the lust of his flesh in his anger. और हम देखते हैं कि वचन 6 में कि हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश के लोगों को लताड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके शरीर में जो क्रोध की जो भावना थी, उससे लड़ते हुए वह उससे लड़ रहे हैं। So that is the example for us. That is the attitude that Hebrew writer is telling us to have. और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण जो इब्रानियों का लेखक है वह हमें बताता है। We can see in verse 5, you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. और हम इब्रानियों 12 के वचन 5 में पढ़ते हैं, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे गुड़के तो हियाव न छोड़। See, from here on, the writer of Hebrews is telling about the disciplining that the Lord is allowing in our life. और यहाँ से आगे के जो वचनों को भाई बहनों यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़े तो हम पाते हैं कि जो लेखक है इब्रानियों का, वह हमें बताता है कि प्रभु किस रीति से हमारी ताड़ना करता है, कैसे हमें हमारी शिक्षा करता है। See, there are 3 words that we have to remember here. First word we have to remember is you have forgotten the exhortation. और यहाँ पर हमें 3 मुख्य बातें भाई बहनों जिससे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें उसे स्मरण करें। पहली बात कि तुम उस उपदेश को भूल गए हो। See, it's possible that when the Lord disciplines us, when he leads us through suffering, he leads us through pain, sometimes he beats us with his rod, we can forget that the Lord is disciplining us. और कई बार भाई बहनों हमारे साथ ऐसे होता है कि जब प्रभु हमें कठिन परिस्थितियों से होकर गुजारते हैं और हम हमारे जीवन में संघर्ष करते हैं और हमारी ताड़ना की जाती है, तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि यह प्रभु है जो हमारी ताड़ना कर रहे हैं। Second thing that we see here is we can, verse 5 it is written, we can regard lightly the discipline of the Lord. और
दूसरी मुख्य बात जो वचन 5 में हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु की इस ताड़ना को हल्के में ले सकते हैं। That means we don't take it as a disciplining. God is trying to teach us something, and that lesson we can just neglect. और इसका मतलब है कि प्रभु हमें कोई पाठ, हमें कोई किसी बात को सिखा रहे हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे और केवल उसे अनदेखा कर रहे हैं। I remember some time ago, quite some time ago, one brother was telling like this: when he shaves, when there is a cut with a blade, he asks the Lord, Lord, what are you trying to teach me here? कुछ बीते समय पहले मैंने एक भाई को इस प्रकार से कहते सुना कि जब मैं अपनी दाढ़ी शेव करता हूँ और जब ब्लेड ब्लेड से मेरे जो त्वचा है, चमड़ी है, वह चेहरे की कट जाती है, मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु तू मुझे यहाँ पर क्या सिखाना चाहता है? Sometimes when we slip or when some small incident happen, we can ask the Lord, Lord, are you teaching me something? Maybe there is some lesson God is going to teach us even through that. या कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं पर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, हमारे साथ कुछ छोटी सी भी बात हो जाती है, घटना घट जाती है, हम वहां पर प्रभु से पूछे, प्रभु तू इस माध्यम के द्वारा मुझे कौन सी बात बताना चाहता है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? And we can see the third attitude, that is the most dangerous attitude that we face. और तीसरी बात, मुख्य बात जो सबसे बहुत ही भयानक और खतरनाक स्वभाव है जिसका हम सामना करते हैं, we can see here, we can get discouraged when the Lord is trying to reprove us. और हो सकता है संभवत कि जब प्रभु हमारी ताड़ना करे हम निराश हो जाए, हताश हो जाए। See that it is second time Hebrew writer is telling in just few verses. We can see in verse 3 that you may not grow weary and lose heart. That is, you can get discouraged. And in just 2 verses afterwards, again he is telling the need that we should not get discouraged when the Lord tries to discipline us. और हम वचन में आप ध्यान पूर्वक पढ़े कि हम इसी अध्याय के वचन 3 में भी हम फिर एक बात को 2 बार वचन में दोहराते हुए पढ़ते हैं। वचन 3 में भी लिखा गया है कि हम वहां पर हियाव ना छोड़ दे, यानी कि हम वहां पर निराश न हो जाए, हताश न हो जाए। फिर से वचन 5 में उस अंतिम भाग में वचन में दोहराया गया है कि हम हियाव ना छोड़ दे, हम निराश न हो जाए। See, I want to tell you, my dear brothers and sisters, this is a very common attitude among believers, that when some difficulty comes, when Lord is trying to discipline us, God allows us to go through some pain, now we can soon very easily get discouraged. और भाई और बहनों, आमतौर पर हमारे साथ हमारा ऐसा स्वभाव हो जाता है कि जब कभी हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं या प्रभु हमें तकलीफों से होकर गुजारते हैं या हमें ताड़ना करते हैं, हम बहुत ही आसानी से और जल्दी ही निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। We can see this word in 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. It's written, be of sober spirit, be on alert, because your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour. और हम इसके संबंध में वचन पढ़ सकते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8, जहाँ पर लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। You know what will happen when devil devours us? We'll be just like sitting like vegetables, discouraged, depressed. और क्या होता है भाई बहनों, यहाँ पर वचन जो कहता है कि शैतान गरजने सिंह की नाई हमें फाड़ खाए, और फाड़ देने का अर्थ क्या होता है कि फाड़ देने यानी कि आप पूरी तरह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश और हताश होकर आप बैठ जाते हैं। I want to encourage all of you, just follow the word 9, verse 9, what is written here. That is the way we can fight. We have to fight against discouragement. Resist him, firm in your faith, knowing that the same experience of suffering is being accomplished by your brethren who are in the world. देखिए, मैं आप सभी को प्रोत्साहन करके कहना चाहता हूँ कि आप वचन 9 को ध्यान पूर्वक पढ़े और इसमें जो बातें लिखी उससे आप करें। कि वचन 9 हम पढ़ते आगे, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोगते रहते हैं। I want to tell you, this temptation will come to all of us to get discouraged and downcast, but we have to resist it, firm in our faith. Don't allow discouragement to get into our heart. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यह जो प्रलोभन है पाप का, वो हम में से हर एक व्यक्ति के पास आता है, जहाँ पर हम अपने आप के विषय में नीचा सोचे और अपने आप को निराश कर दे, परंतु हम यहाँ पर वचन 9 के अनुसार कि हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ कर दें। Yeah, and then we can see in verse 6, those whom the Lord loves, he disciplines us.
and he scourges और every son whom he receives. Verse 6. और इब्रानियों के 12 वचन 6 में, इब्रानियों 12 के 6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। You know, the word scourging is actually the word used in the Gospels, where Jesus is beaten extremely hard, in a very hard way by the Roman soldiers. और हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि ताड़ना करता है और उसे कोड़े भी लगाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं सुसमाचार की पुस्तकों में, जहाँ पर हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हुए पाते हैं कि उन्हें जो वहाँ के सैनिक और जो लोग थे उन्होंने बुरी तरह से उन्हें मारा था और पीटा था। You know, it is possible that there are situations where I know in my own life the Lord has punished me, very hard punishment he has given. और संभवतः ऐसी ही परिस्थिति का मैं भी सामना मेरे जीवन में कर सकता हूँ, जहाँ पर प्रभु मेरी ऐसी ताड़ना करते हैं और मुझे बहुत ही बुरी रीति से मेरी ताड़ना की जाती है और मुझे मारते हैं। You know what is the picture? Why God is doing like that? It's written in verse 6. It's a picture. It shows that the Lord loves those whom he disciplines like that. और ये किस बात का प्रतीक है, कैसा चित्रण है? हम वचन भाई और बहनों वचन 6 में पढ़ते हैं उसके शुरू में कि वचन लिखा है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। You know, when we are young in our Christian life, when we are like small children in our Christian life, you know that song which says, Jesus loves me, as Jesus loves me, because the Bible tells me so. So that is the first way we can know that Jesus loves me, because the Bible tells that he loves each one of us dearly. अब भाई बहनों, जैसे हमारे जीवन में भी हम प्रभु में जवान होते हैं या हम छोटे बालक के समान प्रभु में मसीह में होते हैं, तब हम जैसे कि छोटे बच्चों की नाई वह जो गीत गाया जाता है, जहाँ पर वो गीत ऐसे कहता है कि यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल में ऐसा लिखा है। और छोटे बच्चों को हम वैसे ही सिखाते हैं और उसी दशा में वे प्रभु के प्रेम को जानते हैं कि प्रभु उनसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। But as we grow in our Christian life, you know what is the mark of his love? लेकिन जैसे जैसे हम हमारे मसीह जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं, उन्नति करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको पता है प्रभु के प्रेम का वह चिन्ह, वह प्रतीक क्या होता है? Mark of his love is that he scourges, he gives hard punishment to us when we go astray. और वहां पर हम प्रभु के प्रेम की प्रेम को हम इस रीति से जान सकते हैं कि वह हमारी ताड़ना करता है और बहुत ही बुरे रीति से हमें वो कोड़े भी लगाता है। We read in Revelation chapter 3 verse 19, those whom I love, Jesus is telling, I reprove and discipline. Be zealous and therefore and repent. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 में हम पढ़ते हैं, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। In Proverbs chapter 22 verse 15 is written, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will remove far from him. और नीति वचन अध्याय 22 वचन 15 पढ़ते हैं, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। You know, in our heart also there is so much of foolishness. You know how this foolishness can go? As the Lord leads us through hard disciplining circumstances. और भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय में भी कई सारे मूर्खता की बातें, मूढ़ता की बातें होती है, और वह हमसे कैसे दूर हो सकती है? वह प्रभु हमें अन्य परिस्थितियों के द्वारा जब लेकर चलते हैं और हमें ताड़ना करते हैं उसके द्वारा। Now we see in verse 7, it is for discipline that you endure. God deals with you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? और इब्रानियों 12 के वचन 7 में आगे हम पढ़ते, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? See, chastening is a part of our father's training to us. और यहाँ पर देखिए, जो छड़ी की ताड़ना होती है, जो ताड़ना होती है, वह हमारे पिता जो हमें बातें सिखाते हैं उसका एक हिस्सा होता है। It is a mark of
our sonship. और यह एक चिन्ह है कि हम उसके पुत्र हैं। I was reading the commentary by Andrew Murray, and he was telling like this: receive every inward and outward trouble, and every disappointment, pain, uneasiness, dark. Yeah, you can translate it. और एक परमेश्वर के जन थे एंड्रू मूरे, उन्होंने एक किताब लिखी थी टिप्पणी करते हुए प्रभु के प्रेम के विषय में। उन्होंने कहा कि हर एक वह निराशा की बात और हर एक अंदर भीतरी तौर पर और बाहरी तौर पर जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती है, and receive every darkness and sad situation with both the hands. और अपने दोनों हाथों के द्वारा हर एक उस अंधकार से भरी हुई उन बातों को, समस्याओं को और उन तकलीफों को आप स्वीकार कर लें। That is a word, as I was reading, really touched my heart. Receive all these disappointments and dark situations and troubles and sad situations with both the hands. और यह बात पढ़कर मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला, जहाँ पर वह व्यक्ति ऐसे कहता है कि अपने दोनों हाथों के द्वारा हर एक उस ताड़ना के और तकलीफों के दुख से भरी परिस्थितियों को आप स्वीकार कर ले, अपना ले, हर एक उस अंधकार, हर एक उस उदास करने वाली बातों को आप स्वीकार कर लें। And he continues to say, they are opportunities by which we can die to ourselves and enter into a greater fellowship with Jesus. और आगे वह भाई उस प्रकार से आगे लिखते हुए बताते हैं कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के साथ संगति में प्रवेश कर सकते हैं। We can see that small children, when they are initially going to school, you have to drag them to school, and they don't like it. They would like to be at home or in some playground and play, but initially we drag them to the school, and like that our Father in heaven also drags us into his education. Many times we don't like that. और जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं भाई बहनों, जब वो छोटा बच्चा होता है, वह स्कूल जाता है, उसे शुरू में स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे हम खींच कर, हाथ पकड़ कर खींच कर उसे स्कूल ले जाते हैं, क्योंकि उसे वो अच्छा नहीं लगता। वैसे ही भाई बहनों, प्रभु जब हमें कोई पाठ सिखाते हैं, तब उसी प्रकार से हमें वह उसका जो शिक्षा का जो स्कूल है, उसमें वो हमें खींच कर शुरू में हमारे जीवन में वह हमें प्रवेश कराते हैं। Many times when there is an exam, an important exam, we pray that there'll be some heavy rain and some rain holiday will be there. But it's through these exams we go into the next class. Like that, it's through these chastenings and sufferings that we grow in a Christian life. और जब कई बार हमारी परीक्षा होनी होती है और हम वहां पर भयभीत होते हैं और कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु भारी बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी करा दीजिए। हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं ताकि हमें परीक्षा ना देनी पड़े, परंतु इसी परीक्षा देने के द्वारा हम अगले स्टैंडर्ड में, अगली कक्षा में हम प्रवेश कर पाएंगे। Tozer said in one of his messages like this, that whenever the Lord wants me to give me some spiritual progress, he puts me in hot water and he boils me till I'm pink, and when everything is over, when I come out of the situation, I see that I made little progress in Christian life. और एक प्रभु के जन है टोजर करके, उन्होंने अपने एक संदेश में इस प्रकार से कहा कि जब कभी प्रभु मुझे आत्मिक रीति से मेरी उन्नति करना चाहता, मुझे आगे की ओर अगले स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं, उसके पहले वह मुझे गर्म पानी में डुबोकर मुझे अच्छे रीति से खौला कर उबालते हैं, और उसके बाद में जब सब कुछ वह क्रिया पूरी हो जाती है, तब वह मुझे आत्मिक रीति से अगले स्तर पर लेकर जाते हैं। And we see in verse 8, if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. और वचन 8 में आगे हम पढ़ते, यदि तू वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। See, there is written, if we go astray and the Lord is not punishing us, that is a dangerous sign. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम हमारे जीवन में गलत मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु हमारी ताड़ना नहीं कर रहे, तो वह बहुत ही भयानक दशा है। I remember one of the Lord's servants said like this: if you run far away from him and the Lord does not come behind you with rod and try to discipline and try to bring you back, that's an extremely dangerous sign. It's possible that you may not be the child of God. और एक भक्ति में परमेश्वर के जन थे जिन्होंने इस प्रकार से कहा था और बताया था कि
कि आप अपने जीवन में एक गलत मार्ग पर आगे कर बड़े चले जा रहे हैं और प्रभु आपके पीछे छड़ी लिए हुए आपकी ताड़ना करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आपको लौटा कर ले चले, तो ऐसी दशा यदि आपकी है तो वह बहुत ही भयानक दशा है और संभवत यह संभव भी है कि हो सकता है आप प्रभु की संतान भी ना हो। So we see in verse 9, furthermore, we had earthly fathers who discipline us and we respected them. Shall we not much rather be in subjection to the Father of spirits and live? और वचन 9 में हम पढ़ते हैं आगे की ओर, इब्रानियों अध्याय 12 में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना क्या करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक ना रहे जिससे जीवित रहें। So this word very, very clearly says that we have to submit to the Lord's chastenings. और यहाँ पर यह जो वचन है वो हमें साफ साफ हमें बताता है और कहता है कि प्रभु की ताड़ना के हमें अधीन होना है। That means, see, when the Lord leads us through these situations, if we murmur and complain and grumble, then actually we are wasting that situation. Brother, can you repeat? When the Lord leads us through these situations and we grumble and complain and resist this situation, then we are actually wasting these chastenings of the Lord. और यदि जब कभी प्रभु हमारी ताड़ना करते हैं तब हम उसके विषय में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और शिकायतें करते हैं और उसका सामना करते हैं, तब ये जो ताड़ना हमारी हो रही है इसका कोई लाभ नहीं। So that is why it's so important that we have to submit to his chastening, learn the lessons that God has to teach us. इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभु की जो ताड़ना जो प्रभु हमारी करते हैं उसके हम अपने आप को अधीन कर लें और जो प्रभु हमें बातें सिखाना चाहते हैं उससे हम सीखें। And we see in verse 10, for the earthly parents disciplined us for a short time, as seemed best to them. But the Lord our Father disciplines us for our good, that we may share his holiness. और वचन 10 में आगे पढ़ते हुए कि संसारिक और शारीरिक जो पिता होते हैं वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। There we see the real purpose behind the Lord's discipline. और यहाँ पर हम एक मुख्य उद्देश्य प्रभु जो हमारी ताड़ना करते हैं उसके पीछे हम पाते हैं। We may share his holiness, or we may partake of his divine nature. कि हम प्रभु की पवित्रता के भागी हो जाए, हम उसकी पवित्रता में से पवित्रता के हिस्सा बन जाएं। See, that I want to tell you, my brothers, that is the greatest blessing the Lord can give us on this earth. भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आशीष जो प्रभु इस धरती पर हमें दे सकते हैं, that is to partake of his own nature. वह यह है कि हम प्रभु के स्वभाव के सहभागी बन जाए, उसके भागीदार हो जाए। But that education, that part of education where we have to partake of his nature goes through this hard disciplining of the Lord. लेकिन प्रभु के स्वभाव का सहभागी होना, उसके भागीदार होने का जो पढ़ाई है उसे हमें पूरी करनी होगी, जो हर एक उस ताड़ना के द्वारा जो प्रभु हमारी करता है। We see in verse 11, all the discipline for the moment seem not joyful but sorrowful. Yet for those who have been trained by it, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness. Verse 11. और वचन 11 में हम पढ़ते हैं, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। You know, we know that when a father is beating his child, son or daughter, he or she may be quite sorrowful, but through those disciplines, the child is learning some precious lessons. और हम जैसा कि देखते हैं कि एक छोटे बच्चे का जो पिता है वह उसके या माता है उसकी ताड़ना करता है, उसे मारता है, उसकी ताड़ना होती है, वह बहुत ही दुख भरी परिस्थिति होती है। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही कीमती एक पाठ है जो एक बात है जो वह बच्चा सीखता है वहाँ पर। You know, in our life also, when the Lord leads us through these hard disciplining situations, we also may be sorrowful. We may be quite sorrowful in our heart. और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भाई बहनों, जब प्रभु हमारी ताड़ना करते हैं तब हम बहुत ही दुखी होते हैं और वह बहुत ही दर्दनाक और दयनीय दशा होती है जहाँ से हम होकर गुजरते हैं। But we see here the end result is
it brings in us the peaceable fruit of righteousness. लेकिन यहाँ पर हम इस वचन के अंत में पढ़ते हैं कि इस ताड़ना के द्वारा इसका जो परिणाम निकलता है वह ऐसा है कि धर्म धर्म का प्रतिफल हमें मिलता है। See, it is righteousness along with peace. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल। We know what is kingdom of God is. Kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और जैसा कि हम परमेश्वर के राज्य के विषय में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। A righteousness without peace and joy is a counterfeit righteousness. और वह धार्मिकता जो मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद के बिना की होती है, वह धार्मिकता झूठी धार्मिकता है। There is a word in Psalm 85 verse 10. और भजन संहिता 85 वचन 10 में एक वचन हम पढ़ते हैं। Is written, loving kindness and truth have met together, and righteousness and peace have kissed. Psalm 85 verse 11, verse 10. और भजन संहिता 85 वचन 10 में हम पढ़ते हैं, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। Just think of that word, righteousness and peace have kissed each other. और आप उस वचन पर, उस वचन के भाग पर आप मनन करें कि धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। That is the end result for which the Lord is sending these real tough situations in our life. और यह उस बात का अंतिम परिणाम होगा, वह हर एक ताड़ना का जो प्रभु हमारे जीवन में अनुमति देते और भेजते हैं। So Bible says, let us strengthen our hands and strengthen our hands that are weak and knees that are feeble. Verse 12. और इसीलिए हम वचन 12 में पढ़ते हैं, wait a second. इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधे करो। So we can stop there for today. So what we see, this portion is mainly regarding the way the Lord disciplines us, and the end result of it is that we may partake of His divine nature. और आज के अध्ययन के दौरान हम यहीं पर रुकते हैं, और जैसा कि हमने आज के अध्ययन के दौरान वचन के द्वारा जाना और अध्ययन क्या पढ़ा कि प्रभु उस हर एक ताड़ना को जो हमारे जीवन में अनुमति देते हैं और हमारी ताड़ना करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य, सर्वोत्तम उद्देश्य यही होता है कि हम उसके उस ईश्वरीय स्वभाव के पवित्रता के सहभागी हो जाए। Just remember these three words. Let us not forget when the next disciplining comes that these lessons that we have learned, and let us not lightly regard them nor get discouraged in this situation. और केवल आप मुख्य रूप से 3 बातों का आप ध्यान रखें, जब कभी प्रभु आपकी ताड़ना करते हैं और अगली बार जब आपकी ताड़ना होगी, आप इस बात को ना भूलें कि यह प्रभु है जो आपकी ताड़ना कर रहे हैं, और आप इसको हल्की बात न जानने पाए और आप निराश ना हो। Yeah, we can stop there. So, talking about this discipline of the Lord. तो जैसा कि हमने देखा प्रभु की ताड़ना के विषय में, one verse is there in Psalm 141 verse 5. एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 141 वचन 5। It says, let the righteous smite me in kindness and reprove me. It is oil upon the head. Do not let my head refuse it, for still my prayer is against the wicked deeds. भजन संहिता 141 वचन 5, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। So the psalmist, even in the Old Testament period, he's saying, let the righteous people smite me, means like beat me with
beat me in kindness means that they correct me in kindness. It is like oil upon my head. और हम यहाँ पर देखते हैं भजनकार के विषय में कि वह भी यहाँ पर पुराने समय में पुराने नियम के अधीनता में हम देखते हैं पढ़ते हैं कि वह कहता है कि धर्मी व्यक्ति भी मुझे कृपा के साथ मेरी ताड़ना करे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। So, brothers and sisters, we are fortunate if we have people like our brothers and sisters, our parents, our elders, who can speak to us in kindness and tell us about something which is not so much right with us. और भाई बहनों हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमसे बड़े होते हैं, प्राचीन होते हैं, हमारे सिखाने वाले होते हैं, जो कृपा के भाव में होकर हमसे कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो हमारे विषय में सही नहीं है। I've I've been blessed very much in my life because of all these corrections. और मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा आशीषित हुआ हूँ उन सारी हर एक सिखाने वाली बातों और ताड़ना के द्वारा। When I am corrected, I feel very sad and sometimes feel very low. और जब कभी मेरी ताड़ना होती है और मुझे सिखाया जाता है, मैं बहुत ही अपने आप के विषय में नीचा और दुखी महसूस करता हूँ। But when I take it in the right way, I find that it really changes my life. लेकिन जब मैं उस बात को सही रीति से ले लेता हूँ, सही मायने में लेता हूँ, तब वह मेरे जीवन में एक वास्तविक बदलाव लेकर आता है। See, I like brethren to encourage me, but I am always open to correction in my life. और मुझे अच्छा लगता है कि जब भाइयों के द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन मैं हर समय अपने विषय में खुला रहता हूँ कि कोई भी भाई मुझे आकर मेरी ताड़ना कर सकते हैं। I find that those are much more helpful for me when people say something which is like a correction for me. I find those are more very much helpful for me. और मैं पाता हूँ कि जो लोग मेरे विषय में आकर कुछ सिखाने वाली शिक्षा की बातों को जब करते हैं और मुझसे कहते हैं, वह मैं पाता हूँ मेरे जीवन के विषय बहुत ही लाभदायक लाभकारी होता है। I will never despise or be angry with anybody who corrects me. और उस हर एक व्यक्ति से जो मुझे सिखाता है और मुझे सही करता है, मैं उससे 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 बुरा नहीं मानूंगा और ना ही उसके विषय में क्रोधित होऊंगा। When you read the Proverbs, you'll find that the wise man is one who receives correction. और हम नीति वचन में एक वचन में ऐसे पढ़ते हैं जहाँ पर कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है वह ताड़नाओं को ले लेता है। Yeah. Discipline is so necessary for all of us, actually, I would say. Sorry, brother, can you repeat? I said discipline is so necessary for all of us, actually, in these days. और मेरा मानना है कि आज के इन दिनों में समय में हमारी ताड़ना होना आवश्यक है। Because sometimes we might just fall apart, just a bit, because sometimes we take it too lightly, our life and our righteousness, that we just go a bit astray, I would say. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी बातों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इसलिए हमारी ताड़ना होना आवश्यक है। Especially when we speak or when we preach or when we teach, so it seems that we are the best. विशेष करके तब जब हम किसी बात का प्रचार करते हैं या हम कोई संदेश देते हैं और किसी को सिखाते हैं, So we think that we are quite righteous, we are quite holy. तब हम अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं पवित्र व्यक्ति हूँ। So we just fall a little backwards, I would say. Sorry, brother. That's the reason why we fall a bit back. और यही कारण है कि हम गिर जाते हैं। Psalm 23 says where David says, "Your rod and your staff, they comfort me."
और जैसे हम भजन संहिता में दाऊद के उस वचन को पढ़ते हैं जहाँ पर वह कहता है कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। See, when he says, "Your rod and your staff comfort me," is like he accepts the discipline in him that God is giving him. और हम वहाँ पर वचन में पढ़ रहे हैं कि दाऊद कहता है कि प्रभु जो मेरी ताड़ना करता है उसके सोटे से उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब है कि प्रभु जो उसकी ताड़ना कर रहा है उससे वह स्वीकार कर लेता है और उससे वह सीखता है। And that's the way we also need to accept this discipline from our Father for us. उसी प्रकार हमें भी हमारे पिता से जो हमारी ताड़ना मिलती है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। We like to discipline our children, और जैसे कि हम अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, remember that we are also the children of God. इस बात का हम स्मरण रखें कि आप भी परमेश्वर की संतान हैं। So as we discipline our children, God will discipline us also. जैसे हम अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं उनको शिक्षा देते हैं वैसे ही परमेश्वर भी हमारी ताड़ना करके हमको सिखाएंगे। I will read from Deuteronomy chapter 8, verse 5 and 6. Brother, आप पढ़िए। और मैं पढ़ना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 5 से लेकर। Listen to this very carefully, people. और आप इस वचन को ध्यान से पढ़े मनन करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 5। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। So that's the reason why, as we discipline our children, God will discipline us so that we can keep the commandments and walk in His way with fear. और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि जैसे हम अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमारी ताड़ना करेंगे ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा का पालन करते उसके मार्गों पर चलें। So the children fears from the जो parents बच्चों because they might scold them, or they might punish them. और यही कारण है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से डरते उनका भय मानते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे कुछ गलत करेंगे तो उनकी ताड़ना की जाएगी। So in Proverbs chapter 13, verse 24 says, "Whoever spares the rod And hates नीति his son, but whoever loves him will delight to discipline him." और हम नीति वचन अध्याय 13 वचन 24 में पढ़ते हैं, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। So as we love our children, we discipline them in many ways. Same way our Heavenly Father loves us. That's why He wants us to be in His way, under His commandment, and walk in all His ways. और जैसे कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनके अच्छे के लिए भले के लिए हम उनकी ताड़ना करते हैं, वैसे ही प्रभु भी है जो हमारे भले के लिए हमें बातें सिखाने के लिए वो हमारी ताड़ना करता है। So it's very important to know about what God's reason why God wants to discipline us. और हमारे लिए उस कारण को जानना कि क्यों परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं, वह कारण जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। So we should not get upset in this. और इसमें हम निराश न हो जाए। That's why it says in Proverbs chapter 3, verse 11 and 12. जैसा कि नीति वचन अध्याय 3 वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब बुरा न मान, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जैसा बाप एक बेटे को अधिक चाहता है, as we love our children so much, we delight in them so that they may build their life in a perfect way. So our Heavenly Father wants us also to build our life the same way as we want our children. So the Father of Heaven wants us also to build our life in a very disciplined way as He wants it.
तो जैसे कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनकी ताड़ना करते हैं कि वे अपने जीवन को एक अच्छी नींव के आधार पर बनाएं और उनका जीवन अच्छा हो, वैसे आशीषित हो, वैसे परमेश्वर भी हमारे विषय में चाहता है कि वह हमसे प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण वह हमारी ताड़ना करता है कि हमारा जीवन भी अच्छी नींव पर बने। I'll end it here by saying, brothers and sisters, that God never hates us, but the love that He has for us, and because He doesn't want anyone to be perished or go to hell, He wants each and every one to enter into His gates. This is the time, and these are the reason why that God loves us. That's the reason why He wants to discipline us according to His will, in His way. Amen. God bless you all. और भाई बहनों, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर, भाई बहनों, हम में से किसी से वह नफरत नहीं करते, वो बैर नहीं करते हैं, परंतु प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हमारे भले के लिए ही कि हम उसके समान हो, आशीषित हो, वह हमारी ताड़ना करते हैं। आमीन।